Professor Dinesh Kumar Gupta from the Department of Library Information Science, Central University of Haryana, Mahendragarh, and all the dear participants, a very good morning to you all. I, Professor Preeti Mahajan, on behalf of the Department of Library Information Science, Punjab University, Chandigarh, and on my own behalf, welcome you all in the fifth webinar in the new series of the webinar entitled PU LIS Webinar Series. The current series are being organized to reach out to LIS students, research scholars, and the professional colleagues during this pandemic period to enhance their professional knowledge and update them in the field. I now take this opportunity to introduce the speaker of the webinar today. We have amongst us Professor Dinesh Kumar Gupta, who is currently the head in the Department of Library Information Science at Central University of Haryana, Mahendragarh. He is also the Dean Students Welfare at the same university. He is the nodal officer for learning management system of the university and chairperson of the working group on online education at the Central University of Haryana. Prior to joining this university, he has served as at Vardhman Mahavir Open University Kota for about 3 decades. He has served as a member of the standing committees of IFLA during 2003 to 2015, has also served as chair of IFLA International Marketing Award during 2009 to 2013. He has published 3 books as IFLA's official publications. He is also a member of the editorial board of Annals of Library and Information Science from Neskia and Library Management of. His areas of interest include marketing of library services, quality management, internet information resources, international and comparative librarianship, etc. He has contributed to MOOC on management of libraries and information centers and knowledge centers, which is hosted on the SWAYAM portal. He also has an exposure to run courses in the blended mode of learning management system. He has completed 3 research projects and has delivered lectures in many FDPs, orientation courses, refreshment courses, which are organized by different universities. Today, Professor Gupta would be speaking on New Education Policy 2020. Without taking much time, I now hand over the proceedings to Professor Gupta, please. Professor Dinesh Gupta. Thank you. Thank you very much, Preeti ji, for nice introduction. At the outset, I appreciate the efforts made by Department of Library and Information Science, Punjab University, Chandigarh, for making such wonderful series of webinars on different facets earlier and now new education policy. So I appreciate and support your idea of holding webinars, particularly on new education policy, because there has been a lot of discussions over this, but it requires more and deeper discussions so that the implementation of the policy is done properly. So I start with my presentation. I have been assigned to speak on new education policy, but it's almost 1 month from now when new education policy was announced on 29th of July. And it is a time that we should pick up each and every area or component of the education policy. So it's very difficult to cover up all the facets, but I think over a period of time this will happen. I have chosen my topic for today's discussion: National Education Policy 2020, a closer look at digital technological interventions. I will particularly focus on this particular area of online and digital education.
So my agenda for the next 50 minutes or so would be to discuss about some key principles of new education policy, uh, and further discussing on online and digital learning, which is required equitable use of technologies at every sphere of teaching, learning, and research. And then I would also give some ideas on how this pandemic has changed our education and teaching and learning. Uh, and I would also throw some lights on how we have been involved in bringing out uh, different developments in so far as online and distance learning, online and digital learning is concerned within the last 5 years, and how digital education is taking place for the future. So I would be covering all these area. Uh, Sir, yes, हाँ sir, बोलिए. before you continue, could you please do it in full screen so that it's visible to everyone, even on phones? I'm so sorry to disturb you, Yeah, but no problem, no disturb you. problem, please. Yeah. Thank you so much. So let's talk about the kind of environment in which we are living in. ऐसा लगता है जैसे जो नेचर जिसमें हवा है, पानी है, ये प्रकाश है, एनर्जी है, सूर्य की ऊष्मा है, वैसा ही कुछ एक इंटरनेट हो गया आज के टाइम पर. अगर कुछ समय के लिए अगर इंटरनेट हमारे एक्सेस नहीं होता है तो हमको बेचैनी हो जाती है. किसी के लिए भी ये बात लागू होती है. तो इंटरनेट हैज बिकम some kind of nature which which has become essential part of our life, and we are working in an environment where web is mystery, uh, because it is unexplored. Every time you find some new opportunities and new avenues from the web. It is just like a new planet every time, and digital is like pen, and किसी भी लेवल पर from primary to higher education and research, without digital, no process can be completed. So when these three are integrated, makes digital transformation and enabler for any business, and this mobile, which becomes fifth aim of any business, man, material, money, and machine. And many times this mobile replaces all four, and this becomes predominant in all. So that kind of environment we are working in. अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो जैसा आप लोगों ने इस पर पहले से कुछ वेबिनार्स आयोजित हुई कर ली है, तो आपको पता है कि 29 जुलाई को अनाउंस हुई थी. और जो हमारे इंडिपेंडेंस से ही जो प्रयास चल रहे थे एजुकेशन को प्रभावी करने के लिए, एजुकेशन को इक्विटेबल बनाने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम राधा कृष्णन कमीशन टू मुदालियर कमीशन, देन कोठारी कमीशन, and then National Education Policy of 1986, and some other reports. So this is the latest addition to these developments, but it is somewhat different from all the earlier efforts made in many directions, in many ways. We will discuss on these aspects. जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो आप पाएंगे सेकंड पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें कि ये वर्ल्ड लेवल में जितने भी एजुकेशनल सिस्टम है दुनिया के, उनको कॉन्फ़िगर करके इस एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं. दिस इज नॉट ओनली फॉर द कंट्री, टू एंश्योर inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities. बहुत साफ है जो गोल है, उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रही है: इंक्लूसिवनेस, इक्विटेबल एंड क्वालिटी.
and everyone is a learner. That way, lifelong learning opportunities means हर एक व्यक्ति हमेशा सीखने का एक गुंजाइश रहेगी। तो मेन बात ये है कि इंक्लूसिवनेस, इक्विटेबिलिटी और क्वालिटी में को लाने में आईसीटी और डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है। डॉक्यूमेंट में काफी तरह से, अलग अलग तरह से इस पर चर्चा हुई है, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम आप लोगों को डिफरेंट फैसिट्स जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के है वो पता होगा कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो रहे हैं। लेकिन हम उनके की प्रिंसिपल्स की बात करें तो हमको 8 की प्रिंसिपल्स इसमें नजर आ रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड अभी तक ये मिसिंग था प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि जो लोकल और जो रूरल जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे फ्रॉम स्कूल लेवल टू हायर एजुकेशन, उनको कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था एजुकेशन सिस्टम से जितना चाहिए था। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रयास हुआ है और उसका एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है कि उसको सबको बराबर साथ लेकर चलना है। इक्विटी एंड इंक्लूजन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, दैट फॉर एवरीवन, whether unemployed or working class people or housewives or dropouts or whatever the status of the learner is there, he will be the part of the education system. So उसको हर एक व्यक्ति को, किसी को भी इससे अलग नहीं किया गया, हर एक को इंक्लूड किया गया है। इंक्लूजन भले वो टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप होगा, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अपलिफ्टिंग फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस पर जोर दिया जा रहा है। इट विल नॉट ओनली द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बट सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सोशल एंड कम्युनिटी ग्रुप पर फोकस है। जो सेंट्रल पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, आई कॉल इट सेंट्रल पॉइंट, वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स। क्योंकि आज के समय में अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगा तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं की वहीं रहेगी, और प्रॉब्लम्स, ज्यादातर प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल इस पॉलिसी में ध्यान में रखा गया है। एम्फेसिस ऑन conceptual understanding learning for exam with no rote learning, conceptual clarity with different approaches। अभी मैं लर्निंग के बारे में थोड़ी देर बात करूंगा कि लर्निंग को किस तरह से होना चाहिएगा। तो लर्निंग पर बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि भले ही इज ए मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक इज ए मीडियम और डिजिटल इज ए मीडियम और ऑनलाइन इज ए मीडियम, and this learning is the cause root on which this education policy has emphasized in big way. Unique capabilities, recognizing, tapping them in each student. आज के डेट में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है और जो सिस्टम है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट पर कोई ज्यादा फोकस नहीं देता, वो ग्रुप परफॉर्मेंस पर हम ज्यादा नोटिस करते हैं। इंडिविजुअल क्या किसी की कैपेबिलिटीज है, किसी में क्या स्किल्स हैं, क्या हुनर है, उस पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडिविजुअल को न केवल स्किल्स बल्कि इंडिविजुअल सिटीजन के रूप में उसको क्या वैल्यूज चाहिए, क्या इथोस चाहिए, इंडियन इथोस की बार बार बात कर रहे हैं पॉलिसी में, तो उस पर पूरा फोकस है। इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी टू बूस्ट लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, न केवल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को यूज करके बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीजों को इन्वॉल्व करके
जो स्टूडेंट को सिखाया जाना चाहिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, और इन सब में इसमें जो पर्टिकुलरली इस पॉइंट में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत हो सकता है, एंड कंटिन्यूअस रिव्यू बिल्ड ऑन सस्टेन्ड रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट फॉर एजुकेशनल एक्सपर्ट्स। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पाए हैं। अगर हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करें ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन की, तो बिल्कुल स्पष्ट है, from starting from primary education to the higher education at every stage, there is an emphasis on digital use of digital technologies and technological interventions. In primary level, there is a need for use of digital technologies for bringing out content in local languages, not only local languages defined in our constitution, but our ancient languages like Sanskrit, Pali, in which our lot of knowledge resides, traditional knowledge resides over there. So जिसके द्वारा हम जो हमारी नॉलेज, एंशियंट नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा there is also call for a national repository of high quality resources for foundational literacy and numeracy to be made available on digital infrastructure for knowledge sharing, Diksha, technological interventions to serve as aid to teachers and help bridge any language barriers that may exist between teachers and the students. And it will be piloted and thereafter it will be implemented. So, एक और बिंदु हमको मिल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2.8 पॉइंट पर, डिजिटल लाइब्रेरीज विल आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड इन स्कूल लेवल। There is a mention of public and school libraries to be for expansion for building a culture of reading across the country, but there is also emphasis on digital libraries at the school level. Then there is also a mention of use of digital content for development of school teachers, periodic development, and every teacher will go for 50 hours professional development program, and this digital technology will be a major contributor for that. Then there is also similar kind of course for principals and administrators, and the use of digital learning is also highlighted for that kind of program for principals and administrators in the schools. There is also reference of transforming assessment for student development, and it says that artificial intelligence-based software could be developed and used by students to help track their growth through their school years based on learning data and interactive questionnaires for parents, students, teachers, in order to provide students with valuable information on their strengths, areas of interest and needed areas of focus, and to thereby help them make optimal career choices. So technological interventions न केवल delivery of content,
but also in understanding the students, their requirements, their needs is being emphasized. There is also a reference of at 4.46 that once internet connected smartphones or tablets are available in all homes or schools, online apps with quizzes, competitions, assessment, enriched material, and online communities for shared interests will be developed and will work to enhance all the aforementioned initiatives and group activities. So, digital pedagogies and thereby enriching the teaching learning process with online resources and collaboration. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बार बार स्कूल लेवल पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी और लर्निंग का काफी एम्फेसिस दिया जा रहा है जो बेसिक अम्यूनिटीज होंगी जिनके बारे में पॉलिसी डिस्कस कर रही है सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चर एट द स्कूल लेवल उनमें भी ये बात की जा रही है बार बार adequate and safe infrastructure including working toilet whatever many physical infrastructures but computing devices internet libraries will be provided to all schools to ensure that teachers and students receive a safe, inclusive, effective learning environment and are comfortable and inspired to teach and learn in their schools. There is thereafter is mention for teacher education program and use of technology, learner center and collaborative technology is being emphasized in point number 5.24. Then we come to higher education. In higher education part, the policy describes the current problems faced by the higher education system and also offers possible solutions for the problems in the policy vision, and it includes that increase access, equity and inclusion जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उनको कैसे अचीव करने हैं थ्रू ए रेंज ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक एजुकेशन स्कॉलरशिप बाय प्राइवेट philanthropic universities for disadvantaged group and online education open distance learning and all infrastructure learning material accessible and available to learners. So that kind of provisions are clearly mentioned in the policy in the introductory part itself. Just a minute. There is also mention on we will discuss about flexibility in the system about multiple entry and exit points because these are the crux of this policy and this technology can help big way in making happen this kind of flexibility through academic bank of credit which will be digitally stored in academic credits and from various organized recognized higher education institutions so that the degrees from higher education institute can be awarded. CBCS, there is also emphasis on CBCS and for offering CBCS in effective way, online and digital education can help. In point 12.5, there is a mention that open
distance learning and online education provide a natural path to increase access to quality higher education. In order to leverage its potential completely, ODL will be renewed through concerted evidence-based efforts towards expansion while ensuring adherence to clearly articulated standards of quality. Means this ODL and digital learning will not only will be useful for campus-based education, but also uh, achieving GER, which is our target to achieve 50% of the GER for higher education by 2035. There is also mention in point 13.2 that every classroom shall have access to latest educational technology that enables better learning experiences. Here is also mentioned that faculty will be given freedom to design their own curricula, pedagogical approaches within the approved framework, including textbooks, reading material, assignments, and when the faculty gets such freedom, certainly technology can help the teacher in a big way, because in new education policy, this teacher is the center focal point of the whole system, and who is given big responsibility to transform the complete system. There is a provision for establishing of national education technology forum, which will be autonomous NETF, which will be autonomous platform for free exchange of ideas on use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration, and so on and so forth, for both school and higher education. The aim of the NETF will be facilitate decision making on induction, deployment, use of technology. So, full support from the government to NETF will be there. There is also provision for establishment of a unit in the ministry for creating a dedicated unit for building a world-class digital infrastructure, educational technology, content capacity. This not only the infrastructure, but the content creation and the capacity building will also part of work of this particular unit. There is a point, full point on education, online digital education in point number 24, and it says that benefits of online digital education can be grasped while addressing or mitigating the downsides. In the meantime, existing digital platforms and ongoing ICT-based educational initiatives must be expanded to meet the current and future challenges in providing quality education for all. Here are various, it talks about various key initiatives for digital online education. Includes conducting pilot studies for online education by the institutions like NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IITs, NITs, and they can bring out some good results, and that can be replicable in other institutions. There is also provision of digital infrastructure for creation of open, interoperable, available public digital infrastructure in education sector to use multiple platforms and point solutions. There is also provision. It indicates that online teaching platforms like FAM can be provided
to individual teachers with a structured, user-friendly, rich set of assistive tools for monitoring progress of the learner. Because at the moment we don't have any support for the individual teacher that he can find from institution or from the government. But there is a provision that this access of STEM platform can be provided to the individual teacher for performing his duties. There is also provision of content creation, digital repository, and dissemination of the content. You might be remembering the project called eVidya, announced by the finance minister in this budget this year, in which she talks about many projects related to online and digital learning in the name of eVidya. So one nation, one content, like one platform, like solutions were suggested in the budget speech. There was also an announcement of providing online education from top 100 universities in the country. There were also many other announcements in the budgets to make this system popular. There is also provision of in the policy about particularly because whenever this discussion on digital and online education comes, there is a point raised about the digital divide that वहाँ तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वहाँ तो स्पीड कम है. So this particular point has been kept in mind and brought out in the as part of the national education policy. There is also mention of virtual labs so that the students residing in distant and rural areas or the areas where in the colleges where facilities are not available, the students are not deprived of. There is also mention of training and incentives for teachers, online assessment and examinations. There is also mention of blended model of learning. So I mean, lot of coverage and emphasis has been given on online education. So if we move further and look that a beginning has already been made towards a shift towards this online digital education, and thanks to this pandemic, not that way. This is rising at the moment and a danger to the humankind. But so far as online digital education is concerned, the people have accepted this system, and they are. अगर आज की बात करें तो पिछले 6 महीनों में करीब 6 महीने हो गए, एक भी कॉलेज और स्कूल पूरे कंट्री में नहीं खुला है, और फिर भी एजुकेशन चल रही है, भले वो पिछला सेमेस्टर हो चाहे ये रनिंग सेमेस्टर हो, एजुकेशन अभी रुकी नहीं. And the similar situation is not only in the country but throughout the world. अगर हम टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 94% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ द फिजिकल campuses, are not able to reach to the campuses, and उस केस में अगर हम हमारे कंट्री की बात करते हैं तो जो हमने पिछले 5 सालों में जो एफर्ट्स हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से,
उनकी वजह से आज हमको ये पता नहीं चल रहा है कि अगर हमारे स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, फिर भी हमारी टीचिंग लर्निंग चल रही है ड्यू टू दीज डिजिटल एंड ऑनलाइन इनिशिएटिव्स। एंड जो सारे इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ आए हुए हैं अभी, और in this particular period, we have used WhatsApp, emails to transact education to the students for sharing PPTs, files, text files, videos, course content in different forms. Use online meeting tools like Google Meet or Zoom or Skype or such meeting tools for organizing workshops and also taking classes. Compiling, linking resources, content on university pages, department faculty pages, etc. Video recording of lectures for students and sharing self-recording, and maybe through mobile or laptop or some other means by the faculty itself. And each day, faculty is being asked to provide such information in by the government or by the departments or by the universities, so that they can make sure that yes, education is going on. बट अगर हम देखें तो ये जो सारा इफर्ट चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि हम आलूफ में कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में जो बदलाव चल रहा है उसके साथ हम, जैसा कि शुरू में ही इस एजुकेशन पॉलिसी के इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है कि जो SDG 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, उसको एड्रेस करते हुए सारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई है और पूरी दुनिया उस गोल को अटेंड करने में लगी हुई है। तो अगर हम ऐसे डेवलपमेंट्स पिछले 5 साल के देखते हैं थ्रूआउट द वर्ल्ड, तो हमको ऐसा लगता है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं शायद वो दिशा ठीक होगी। एक रिपोर्ट आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर बहुत पहले 2012 में, उसमें इस तरह के प्रोजेक्शंस किए गए थे कि आगे फ्यूचर की यूनिवर्सिटीज किस तरह की होगी, उनमें किस तरह का एजुकेशन और लर्निंग टीचिंग होगा। तो इस तरह के विजुअलाइजेशन किए गए थे जिसमें न स्टूडेंट नजर आ रहा है, न कोई ह्यूमन बीइंग नजर आ रहा है, बल्कि सब कुछ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के अंदर समा रहा है। एप्स जहाँ पर होंगे, जहाँ पर जो वेब होगा और कंटेंट होगा और मोबाइल होगा और ये सब होगा। ये 2030 की बात कर रहे हैं कि 2012 से लेकर 2030 तक इस तरह का बदलाव होगा। अगर और एक्सपेंड इसी रिपोर्ट का एक्सपेंड करके इस तरह का बताया कि वहां पर डाटा विल बी प्रोमिनेंटली देयर, यूजुअल डाटा जो लर्नर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा तो जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से जो एनालिटिक्स निकल कर आएंगे वो निश्चित रूप से इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग को अदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। मोबाइल होगा, एनालिटिक्स, इंसाइट, सब कुछ क्लाउड, ये सारी टेक्नोलॉजीज की हम रोज बात करते हैं, क्योंकि जब फ्यूचर यूनिवर्सिटीज बिल्डिंग्स में नहीं होगी शायद, और डिजिटल स्पेस में होगी, जो कि हमारी पॉलिसी भी इंडिकेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक और कुछ चैलेंजेज हमें निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि जब डिजिटल स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम अभी तो जो स्ट्रेंथ है, जो एसेट है किसी भी सिस्टम की, वो दो ही चीजों में है, या तो बिल्डिंग्स में है फिजिकल स्पेस, या फिर इंटेलेक्चुअल स्पेस, जो कि प्रोफेसरियल एसेट्स को बात करें हम कि वहाँ की जो फैकल्टी है, और इन दोनों का एक बहुत बड़ा योगदान है किसी भी सिस्टम को न केवल लाइव रखने में, बल्कि उसको एक हाइट देने में। लेकिन जब डिजिटल स्पेस आ जाएगा तो ये जो दो प्रोफेसरियल एसेट और फिजिकल एसेट्स, इनका क्या होगा? निश्चित रूप से इनमें इनके यूसेस होगा, उनमें बदलाव होगा। शायद क्योंकि देखिए अभी आगे हम बात करेंगे कि डिजिटल
रिपोजिटरी, नो एकेडमिक, एकेडमिक क्या था, क्या वो था, क्रेडिट रिपोजिटरी काइंड ऑफ थिंग। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं पर एक जगह पर कोई कोर्स कर रहा है, एक सेमेस्टर कहीं किया, 2 सेमेस्टर किया, कहीं किया, उसके बाद में और कहीं दूसरी इंस्टीट्यूशन चला गया, फिर तीसरी इंस्टीट्यूशन चला गया, तो अभी जो हमारा तरीका है कि एक स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो ग्रेजुएशन में 3 साल रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल रहेगा। तो ये जो मॉडल है इसमें निश्चित रूप से एक बदलाव आएगा, क्योंकि अगले साल, अगले सेमेस्टर कौन सा बच्चा जाने वाला है, कौन सा बच्चा आने वाला है, यू नेवर नो। एंड दिस फिजिकल प्लानिंग यू हैव टू rethink. Not only physical planning you have to rethink, but also the services which are provided, which are offered in this physical space, उनको भी बहुत बदलाव की जरूरत पड़ेगी। और न केवल जो प्रोफेशनल जो पोजीशंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज, बल्कि जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो पेडागोगी को जो यूज करने में एक्सपर्ट्स होंगे, उनका दबदबा आगे आने वाले समय में ज्यादा बढ़ेगा, बजाय बजाय कि सब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोफेशनल एसेट्स हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसी तरह से एक 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन आया था, वो बिल्कुल इंडिकेट कर रहा था कि पहला ही स्टार्टिंग विद दिस टेक्नोलॉजी बिकमिंग इंक्रीजिंग सेंट्रल टू एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है 2000 कब आया है, दो साल पहले आया, 2018 में, mapping major changes to education and training in 2025. And interesting, this picture is indicates lot of things जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी इंडिकेट कर रही है कि मोर एम्फेसिस, फुल एम्फेसिस विल बी ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वन शुड फिलोसॉफी ऑफ लर्निंग विल नॉट more tenable. Rather, everyone is learner, including teachers. They have to learn every day, not only the content, the subject, but technology, but the 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 way to produce technology, the knowledge with the help of technology to the डिफरेंस ऑफ द लर्नर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दिस यू नो, अब इसके बाद में अगर हम जो बड़ा पोर्शन देख रहे हैं तो वो OER का रहा है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। आप लोग क्योंकि हमारा सब्जेक्ट में OER और ओपन एक्सेस की काफी बातचीत होती है, तो सेल्फ क्रिएशन जो कंटेंट है उसके बजाय OER को यूज करने पर ज्यादा एम्फेसिस होगा। 2025 की अगर बात करें तो ऐसा नजर आ रहा था। उसके अलावा इसमें अगर सारे फैसिट्स की बात करें तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में एड्रेस है, भले ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो कह रही है वो कि 100 टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड विल बी अट्रैक्टेड, विल बी इनवाइटेड। ये दूसरी बात कि उन 100 में से कौन यहाँ आएगा, लेकिन द पॉइंट इज to have that kind of competition amongst international and national institutions, so that the quality of national institutions go up, और न केवल बल्कि 100 बेस्ट इंस्टीट्यूशंस आएंगी वर्ल्ड की, बल्कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे कैन आल्सो गो अब्रॉड फॉर ऑफरिंग हायर एजुकेशन। ऑलरेडी गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर हो गया है कि जो भी हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको हम कैसे रोकें, और उसके तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि हमारी फॉरेन करेंसी है वो बड़ी मात्रा में जा रही है, उसको हम रोकें। न केवल रोकें बल्कि दूसरे देशों के लोग बच्चे हैं उनको हम हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में न केवल विद इन द कंट्री बल्कि हम बाहर जाकर कैसे ऑफर करें इंडिविजुअलाइज एंड प्रोफेशन ड्राइवन एजुकेशन। जैसा पहले भी बात है कि इंडिविजुअल एजुकेशन पर ज्यादा एम्फेसिस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल एजुकेशन गोज इनफॉर्मल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब फॉर्मल कुछ भी नहीं है, सब कुछ इनफॉर्मल हो रहा है। क्यों, कैसा इनफॉर्मल हो रहा है? क्योंकि कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है,
कोई भी बच्चा कहीं भी एडमिशन ले सकता है, बच्चा जितनी मर्जी चाहे वैसा क्रेडिट अर्न कर सकता है, और नहीं कर सकता है तो जब उसकी मर्जी आए जब कर सकता है। कोई भी बच्चा रिलैक्स्ड एंट्री एंड एग्जिट क्वालिफिकेशन। तो ये क्या है, फॉर्मल एजुकेशन कहाँ रह गया, कहाँ स्ट्रिक्टनेस कहाँ रह गया कि फॉर्मल मीन्स यही एडमिशन लेगा, इसके अलावा नहीं लेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तो स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पर्टिकुलर एरिया they will be open for other subjects. So formal education will not be formal now, it will be informal. And individual and social nature of learning, the nature of learning is changing. So लेकिन अभी इसमें एक जो चीज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रोल ऑफ टीचर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा अगर जो कोई पॉइंट होगा वो है रोल ऑफ टीचर। वो बिल्कुल इनविजिबल है, ऐसा नहीं है कि रोल ऑफ टीचर विल भी खत्म हो जाएगा, नो, जो होगा लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल माध्यम से बढ़ेगा और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से ही। अभी तो क्या है, ही सेज ऑन द स्टेज, जैसे साधु के जैसे आते हैं और भाषण देते हैं हम लोग, लेकिन अब नाउ दिस रोल विल बी ट्रांसफरिंग फ्रॉम सेज ऑफ द स्टेज टू द साइड बाय द गाइड, गाइड बाय द साइड, कि वो साइड में हो जाएगा और वहाँ साइड में रहते रहते जो भी एवेन्यूज अवेलेबल होंगे, क्योंकि पॉलिसी बिल्कुल साफ इंडिकेट कर रही है कि टीचर को जो भी सुविधाएं होंगी वो सारी सुविधाएं टीचर को अवेलेबल होगी। तो टीचर की भूमिका में व्यापक बदलाव होगा। अगर हम थीमेटिक क्लस्टर अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस एंड फिजिबिलिटी देखते हैं तो बहुत अलग सीनरी नजर आता है। मेरे को लग रहा है मेरे को तो थोड़ा चीजों को स्किप करना पड़ेगा, समय की बात देता। मैडम क्या मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ओके ओके। ऐसा ही एक और रिपोर्ट आई थी जनवरी 2018 में, यूनिवर्सिटी फिट फॉर द फ्यूचर, देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिग्रीज विद एलिमेंट्स ऑफ मूक्स। आज हम देख रहे हैं कि मूक्स का कितना डोमिनेंस बढ़ गया है, और उसके बाद चर्चा भी करेंगे हम आगे जब बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य आएगा एजुकेशन का इंडिया में भी। तो बिल्कुल साफ है, न्यूज ट्राइंग आउट न्यू सब्जेक्ट्स ऑनलाइन, एनहांस एग्जिस्टिंग डिग्रीज विद न्यू मॉड्यूल्स, choose less popular courses from other universities देखो बिल्कुल साफ, complement their main studies, undertake part-time work and have children while finishing their studies online। बिल्कुल साफ ऐसी की ऐसी बातें हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इंगेज हो रही है। अब एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं, कोई 2012 की है, 2018 की है, अगर ये रिपोर्ट्स आज की होती, कैसा होता, अभी उसकी बात, चलो इसके बाद बात में करेंगे। पहले एक और रिपोर्ट देखते हैं, एनविजनिंग पाथवेज टू 2030। ये भी ये ऐसा ही कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस विल हैव शेयर रिसोर्सेज। ये भी जनवरी 2018 में एक रिपोर्ट आया था, इंस्टीट्यूशंस विल हैव टू शेयर रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक मूक्स इन ए मोर क्रिएटिव फैशन, यूटिलाइजिंग ग्लोबली बट एक्सेसिंग लोकली, एक्सेस होना चाहिए। This will require greater creativity in curriculum and program development। ये जो एक और प्लान बनाया था गवर्नमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट लाया थे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लान 2025 के लिए क्या होगा, और उसमें ये इंगित किया गया था कि कंप्लीट इकोसिस्टम हैज टू बी चेंज, इकोसिस्टम नॉट इन फिजिकल बिल्डिंग्स एंड surrounded by beautiful parks and all, but technological ecosystem, and through which students are offered flexible locations, flexible schedule, upskilling of work is possible, that kind of ecosystem is required, and learning with peers rather than teachers, and teacher will be at the center of the whole ecosystem। एक और रिपोर्ट आई थी, फ्यूचर स्किल्स के बारे में बात की कि 2030 में किस तरह के बदलाव होंगे स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो देखिए, अगर अमेरिका में और यूके में एक कंपैरिजन किया गया था कि टॉप स्किल्स एंड टॉप 10 स्किल्स कौन सी होंगी, तो फर्स्ट यूएस में फर्स्ट स्किल ये थी कि
अगर स्टूडेंट को ये आ गया कि हाउ टू लर्निंग हाउ टू लर्न, अगर ये आ गया तो दैट विल बी द बेस्ट एंड टॉप स्किल। साइकोलॉजी और उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज और ये सब बात की चीजें हैं। इसी तरह से अगर यूके की बात करें तो जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, लेकिन एक्टिव लर्निंग जो है वो उसका जो नंबर आ रहा है वो काफी ऊंचा आ रहा है। तो लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स वो हैं जो पैंडेमिक के पहले की। अगर ये सारी रिपोर्ट्स आ जाती तो क्या होता? ये जो 2030 और 2025 की बात कर रहे हैं, ये शायद 2022 की बात कर रहे होते, 2022 की बात कर रहे होते, 2023 की बात कर रहे होते, क्योंकि ये जो पीरियड है, ये जो पैंडेमिक ने है, ये इतना रिड्यूस कर दिया है कि जो जिस चीज को समझाने में, लोगों को एक्सेप्ट करने में कई साल लग जाते, 5 साल लग जाते, वो केवल 6 महीने में आदमी को समझ में आ गया। और उन्हें केवल समझ में आ गया, वो शायद 5 साल के बाद भी उतना यूज नहीं करता टेक्नोलॉजी का जितना आज यूज करने लगा है और तत्पर है। जो एक्सेस बैरियर की बात नहीं है, बल्कि मेंटल बैरियर जो है वो एक ब्रेक हुआ है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव टुवर्ड्स ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग। अगर हम एनईपी की बात करें, इट इज प्रोग्रेस नेचर। 2015 में आप लोगों को सब पता है इसका शुरुआत हुआ था, और 2020 में 29 जुलाई को ये आई है। अगर उसका कंसल्टेशन प्रोसेस को देखेंगे तो आप लोगों को सब पता है कितने सारे कंसल्टेशंस हुए हैं, किस लेवल तक के हुए हैं, और कितने कितने बार डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कितने भाषाओं में आए हैं, कितने अवेन्यूज थे कंसल्टेशंस के। लेकिन मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बात बता रहा हूँ, ये 2016 में इनपुट्स मांगे गए थे डिफरेंट सेक्टर्स से, हायर एजुकेशन सेक्टर से, स्कूल एजुकेशन सेक्टर से। और अगर हम उस समय के ऑनलाइन और ओपन लर्निंग कोर्सेज से रिलेटेड इनपुट्स की बात करते हैं, तो इस तरह से इनपुट्स मांगे गए थे। शुड ओपन कोर्स मूव सप्लीमेंट कंप्लीमेंट लर्निंग इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज? Do the colleges, universities in your state have connectivity either through NMECIT or NCAN? Would you suggest promoting MOOCs for specific online courses? If yes, would you suggest in which discipline online courses would be useful in your state? What impediments are likely for implementing online courses, and how can they be resolved? What are the constraints to access MOOC courses in rural areas? How MOOCs can help expanding the learning opportunities or improve quality of the existing courses? Should DTH facility be given to students for anytime learning? Should online testing be accounted for 20% of the grading? ये इसके बाद में स्वयं रेगुलेशन 2016 आ गई। देखिए, एक तरफ कंसल्टेशंस हो रहे हैं और दूसरी तरफ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। इन 2016 same regulation came in. 2017 same platform was launched on Guru Purnima during the Vice Chancellors, All India Vice Chancellors and Directors of National Institutional Directors meet at Vigyan Bhavan by the Honorable President. Not only SWAYAM, but also National Digital Library and some other projects which were planned as part of this नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उस दिन, जिस दिन सोचा है उस दिन ही इम्प्लीमेंटेशन का भी काम शुरू हो गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा नहीं कि 5 साल लगेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनने में, तो 5 साल इंतजार करके उसको जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसका काम हो, नहीं, इमीडिएट। ये सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में आप जानते हैं, भले वो ईपीजी पाठशाला हो, चाहे वो एनएडी हो, चाहे स्वयं प्रभा हो। देखो, एक तरफ अभी प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या डीटीएच से कुछ डिलीवरी ऑफ कंटेंट इज पॉसिबल, और इधर स्वयं प्रभा पे कितने लाखों कोर्स वीडियोज अवेलेबल है, 24 आवर्स 32 चैनल्स। तो इस तरह का जो विजन है इस पॉलिसी में, न केवल पॉलिसी प्लानिंग में बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में, न केवल आफ्टर द ब्रॉट आउट ऑफ पॉलिसी, but from the
planning of the policy itself was there. एक और अगला जो सम्मेलन हुआ था सारे वाइस चांसलर्स और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स का, उसमें भी एक जो अगला एजेंडा था वो क्वालिटी, क्योंकि अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं तो वापस से 3 पॉइंट पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है: एक्सेस, क्वालिटी एंड इक्विटी। और ये जितने एक्शंस हो रहे हैं इन तीनों ही चीजों को एक्सेस, इन्हीं चीजों को एड्रेस करते हुए हैं। इस सम्मेलन का जो मेन मुद्दा था वो क्वालिटी था, और ऑल द नॉट ओनली क्वालिटी इन कंटेंट और टेक्नोलॉजी बट एवरी एस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें क्वालिटी कैन प्ले रोल एंड हाउ टू ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंज इन द सिस्टम वाज एड्रेस्ड। और अगर हम उस समय जो इसके डिसीजन हुए उनमें अगर हम टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी की बात करें तो उस पर फोकस था कि आईसीटी बेस्ड लर्निंग टूल, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑनलाइन लर्निंग थ्रू ईपीजी पाठशाला, MOOCs, NDL, and transfer of credit to the students in universities through this regulation. And there was also Excel plan and timeline that all the universities to adopt SWAYAM courses for credit transfer immediately. Higher education institutions, students and faculty may be encouraged to use SWAYAM platform. UGC to develop 100 MOOC courses every year. अगर आप लोगों ने देखा होगा, देखिए पॉलिसीज बनती है लेकिन शायद जो उसको इम्प्लीमेंट हर लेवल तक नहीं होगा, तो पॉलिसी बनाने वाले का फॉल्ट नहीं है। अभी भी आज के डेट में भी सेम कोर्सेज सभी यूनिवर्सिटीज में लागू नहीं है। शायद उसका यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई न कोई कमी है। ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी या एमएचआर की तरफ से, हम लोकल लेवल पर शायद हम उतना नहीं सोच पा रहे हैं जितना कि नेशनल लेवल पर। देयर इज अ गैप इन द थिंकिंग ऑफ people at the national level and the people who are implementing at the local level. अभी हाल ही में 1 महीने पहले शायद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है कि यूजीसी अभी प्रेजेंटली अबाउट 170 MOOC कोर्सेज ऑफर कर रही है। उनको बढ़ाना है, क्योंकि जो अभी आगे बात करेंगे। एक और डेवलपमेंट हुआ कि 2018 में 2018 में ऑनलाइन एजुकेशन रेगुलेशन आ गया है। एनी यूनिवर्सिटी कैन ऑफर ऑनलाइन कोर्स विच हैज 3.26 on a 4-point scale as per NAAC accreditation. This 2.6 is also being reduced to 3.1. And this decision has already taken up by UGC, but announcement is yet to take place. This was the regulation. Yes, this was another move, refresher course on MOOC. अगर आप लोग लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो पहला जो MOOC कोर्स था स्वयं के द्वारा वो इग्नोर ने ऑफर किया। सेकंड जो MOOC कोर्स था वो NPTEL के माध्यम से IIT दिल्ली ने किया। और आज भी MOOC कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑनलाइन MOOC कोर्सेज रन कर रहे हैं। लेकिन देयर इज अ लॉट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेज ऑफ डिलीवरिंग MOOC कोर्सेज। एक जो MOOC कोर्सेज जो कोविड से पहले, कोविड-19 पहले के थे, उनमें ज्यादा एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ था। एसिंक्रोनस का मतलब वीडियो है आप देखिए, टेक्स्ट मटेरियल है आप देखिए, असाइनमेंट्स हैं, एक्टिविटीज है, क्विजेज हैं आप सॉल्व कीजिए। देयर वाज नो मैकेनिज्म ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन लाइक एट द मोमेंट इट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन यू एंड मी। ऐसा मैकेनिज्म उस समय पर नहीं था सेम कोर्सेज में। जबकि आज जो MOOC कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान चला रहा है या और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन चला रहा है, उनमें एसिंक्रोनस कंपोनेंट नहीं है। उनमें वो वीडियोस नहीं है, उनमें वो कंटेंट नहीं है, उनमें वो MCQs नहीं है, उनमें क्विजेस नहीं है, उनमें वो एक्टिविटीज नहीं है, उनमें इंटरेक्शन नहीं है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो शायद एक ब्लेंडिंग
जिसके द्वारा दोनों सिस्टम, तो शायद ये जो पेंडेमिक है शायद ये एक वरदान है अगर हम हायर एजुकेशन की ओर देखें, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। ये अगर लगता है कि 6 महीने का स्टूडेंट को थोड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो ला रहा है वो उसमें बड़ा भूमिका होगी इस पीरियड की। न केवल रिफ्रेशर कोर्सेज बल्कि जो फैकल्टी का इवेल्युएशन है, जो असेसमेंट है as part of regulation brought out by UGC for the recruitment and promotion CS of the university and college teachers. There is lot of scope for online and digital लर्निंग टीचिंग, और बहुत सारे फैसिट्स हैं जिसमें जिनमें टीचर्स को ये प्रमोट किया गया था, ये मोटिवेट करने की कोशिश थी कि वो इस तरफ आए। शायद इनकी ये जो पोर्शन है मूक्स और आईसीटी मैटिटेड टीचिंग लर्निंग का, ये और बढ़ेगा आने वाले समय में। जो हमारा इवेल्युएशन और असेसमेंट में कुछ और पैरामीटर्स जुड़ेंगे, और जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की हिस्सेदारी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। न केवल इंडिविजुअल असेसमेंट बल्कि नेक असेसमेंट की भी बात करें, इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट की, तो अभी पिछले मैंने एक चर्चा आयोजित की थी, वार्ता आयोजित की थी नेक में, और उसमें मिनिस्टर, जो एचआरडी मिनिस्टर थे, आजकल तो डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उन्होंने ये इंडिकेट किया था, क्लियर इंडिकेट किया था कि ये जो असेसमेंट होगा, नेक असेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इसमें डिजिटल पोर्शन का एक हिस्सेदारी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। सो ये सारे बदलाव आ रहे हैं। ये मैं थोड़ा एस्केप करूंगा क्योंकि ये मैं दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी एक वीडियो था उसको मैं एस्केप कर दिया। अगर हम रेडीनेस की बात करें फॉर द फ्यूचर ऑफ एनईईटी, बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है कि वी आर रेडी टू मूव 2035 टू 2040। हम 20 साल के आगे जाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि अगर हम उसके लिए हम तैयारी में बार बार कर रहा हूँ, हमारी तैयारी में इस पेंडेमिक की विशेष भूमिका रही है। और एक और अच्छी बात ये हुई है, इस पेंडेमिक ने दोनों सिस्टम्स को कंपेयर कर दिया है कि फिजिकल जो क्लासरूम बेस्ड सिस्टम है उसकी क्या कमियां हैं, और ऑनलाइन सिस्टम की उसकी क्या कमियां हैं, क्या बेहतरी है दोनों सिस्टम को। एंड not only the institutions to choose between the systems, but even the parents, even the faculty, even the students can choose between the lines। आराम से वो ये देख सकते हैं कि अगर ऑनलाइन कितना ऑनलाइन लेना है, कितना कैंपस बेस लेना है, कितना, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। एक और बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है, पैनल कॉल्स फॉर अपग्रेडिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्चुअल यूनिवर्सिटीज। अभी स्वयं के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि 2000 से ज्यादा कोर्सेज, स्वयं कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि स्वयं ही डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन हो जाए कि आपने 94 क्रेडिट स्वयं के डिफरेंट कोर्सेज से अर्न कर लिया और यू आर गेटिंग मास्टर्स डिग्री? अगर आपने सपोज 3 ईयर डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री, एंड 108 क्रेडिट आपको चाहिए ग्रेजुएट होने के लिए, और आप 108 क्रेडिट डिफरेंट ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्सेज हैं उनको पास करते हुए, क्रेडिट अर्न करते हुए स्वयं प्लेटफॉर्म पर और कर लिए और आपको एक डिग्री मिल गई, तो क्या स्वयं खुद ही डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन हो जाएगा? यस, पैनल ने ये रिकमेंड किया है, जो पैनल जिसके चेयरमैन नेशनल एजुकेशन कमिशन के चेयरमैन भी थे माननीय कस्तूरी रंजन साहब, उनकी अध्यक्षता में नीति आयोग ने एक पैनल बनाया जिसने ये रिकमेंडेशन किए हैं। इंडक्शन ऑफ क्रेडिट बैंक, ये ऑलरेडी, क्योंकि किसी भी संस्था से कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट
क्रेडिट अर्न कर सकता है, कोई कोर्स कर सकता है और क्रेडिट अर्न कर सकता है। और जैसे हमारे जो भी अर्निंग्स होती है, फाइनेंशियल अर्निंग्स, उनको हम बैंक में जमा करते हैं, तो इसी तरह से वो क्रेडिट आपकी बैंक में जमा होगी, और जिस दिन आप रिक्वायर्ड क्रेडिट 108 प्राप्त कर लेंगे फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। यहाँ सिंगल इंस्टीट्यूशन की बात की, वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है स्वयं की, न केवल न स्वयं, किसी भी संस्था से किसी भी फॉर्मेट में, whether it is online, whether it is campus based, whether it is ODL, whether it is from private university, whether it is from deemed university, आपने कहीं से भी रिक्वायर्ड क्रेडिट कार्ड की और आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिली या सर्टिफिकेट मिला या डिप्लोमा मिला, जो भी आप जितनी क्रेडिट के बाद में जो आपको चाहत है वो एक इसका और जो इसका एक और जो कैलकुलेशन का जो नया तरीका इस में इंगित हो रहा है, वो ये हो रहा है कि एक बार अगर किसी विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो वो ही इज नॉट एट फॉल्ट, क्योंकि उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। वो जरूरी नहीं है कि उस कोर्स को ग्रेजुएशन को 3 ही साल में, 4 ही साल में, 5 साल में ही करे, बल्कि वो जब चाहे जैसे चाहे करे। तो वो जो हमारा स्टूडेंट है, प्रीति जी मैं 5 मिनट और लूंगा। जी जी। तो वो जो स्टूडेंट है वो जीएआर से बाहर रहता था अभी तक, लेकिन अब वो जीएआर में कवर हो जाएगा। तो ये जो जीएआर का जो फॉर्मूला है, इसमें एक व्यापक बदलाव की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि वो इंक्लाइंड तो है, लेकिन उसकी परिस्थितियां, उसकी स्थितियां उस तरफ जाने को अभी अलाउ नहीं कर रही है। तो जिस दिन वो चले जाएगा उस दिन वो क्रेडिट अर्न करेगा, और क्रेडिट अर्न करेगा तो उसको वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री मिलेगी। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी 23 जुलाई, 23 जुलाई को आई थी ये न्यूज, 19 को, एक साल पहले। चंद्रयान 2 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था हमारे बेंगलोर जो सैटेलाइट सेंटर था वहां से। उसमें क्या आया था कि मिनिस्ट्री स्वयं पोर्टल विल ऑफर 6 ऑनलाइन कोर्सेज इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये बहुत ही एक जबरदस्त इंडिकेशन है एक नई तरफ दिशा करने का। ये क्या कह रहा है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 6 कोर्सेज होंगे चंद्रयान से रिलेटेड। Just next day of the launching of Chandrayaan, there was not much knowledge, there was not much research on Chandrayaan at that time, on that day. लेकिन जो पहली आएगी, पहली नॉलेज आएगी, पहली विजडम आएगी, वो बुक कोर्सेज में जाएगी, बजाय कि स्कॉलरली कम्युनिकेशन में। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव आने वाला है फ्यूचर एजुकेशन में, कि जो हमारा स्कॉलरली कम्युनिकेशन है वो टेक्स अबाउट ए ईयर सम गुड क्वालिटी पेपर। लेकिन अगर बुक्स की बात करें तो आपको वो 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन लॉन्च करेंगे। और जैसे जैसे जो नई चीज आ रही है उसको डालते हुए आप अपने कोर्सेज स्टूडेंट तक, क्योंकि अभी तो पहले रिसर्च जर्नल्स में जाएगा, फिर टेक्स्ट बुक्स में जाएगा, फिर टेक्स्ट बुक्स के बाद में क्लासेज में जाएगा, सिलेबस में जाएगा। अब वो जो गेस्टेशन पीरियड है वो खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। डायरेक्ट रिसर्चेज आर कमिंग टू क्लासेस, क्रेडिट बैक बाय माइक्रो बैचलर्स डिग्री। पहले मैंने ऑलरेडी हम इस पर काफी चर्चा, माइक्रो बैचलर्स डिग्री मतलब ये छोटे छोटे क्रेडिट्स आप अर्न करके और एक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए सब्जेक्ट इन क्लास 6. It will bring a lot of change in not only higher education but all the technological transformation of the society. लेकिन हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं और हम ऑनलाइन और डिजिटल टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम उसी तक कन्फाइन करेंगे। और शायद जो अभी हमको हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक में बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद आपके पास ऐसे विद्यार्थी हों जो हाथ में आईपैड लेकर आए और 3D प्रिंटर उनके हाथ में हो, न कोई उनके टेक्स्ट बुक हो, न कोई पेन हो, और आपके सामने ये चैलेंज हो सकता है कि अब उसको मैं एजुकेशन कैसे दूं। अगर हम उस सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद
हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि द स्टूडेंट अब ये इंस्टीट्यूशन या टीचर ये प्रेफरेंस नहीं दे सकता कि मैं चौक चौक और डस्टर से पढ़ाऊंगा, बल्कि ये प्रेफरेंस स्टूडेंट का होगा कि वो कैसे पढ़ना चाहता है. So complete dynamics of teaching learning is being changed. Institutes may be allowed to increase credits for online courses from 20% to 40%. अभी जो STEM courses की बात है, वो 20% of the courses can be online through STEM portal. ये ऑलरेडी यूजीसी ने डिसीजन ले लिया है और मिनिस्ट्री के पास डिसीजन अप्रूवल के लिए गया है कि इसको 20% के बजाय 40% तक कोर्सेज जो है वो स्वयं मुख से ऑफर किए जा सकते हैं किसी स्टूडेंट को. तो आने वाले समय में इसकी संख्या ये उनके लिए है जो फिजिकल प्लेसेस में हम काम कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज है, जो क्लास बेस्ड यूनिवर्सिटीज है. हो सकता है ये 60% हो जाए आने वाले समय में, हो सकता है ये और बढ़ जाए. तो ये जो 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 डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासरूम क्लासेस एजुकेशन एंड डिजिटल एंड ओपन एंड व्हाटएवर हैज बीन डिमिनिशिंग डे बाय डे. MSTRT is also working on SOPs, standard operating procedures for online classes. क्योंकि आज तो हम जिस टीचर के मर्जी आए उस टीचर ने अपनी प्रेफरेंस से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंसेस से 6 महीने काम चला लिया है. लेकिन ये सब ऐसे नहीं चलने वाला है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के अपने एक नियम, कायदे, कानून है और उनके अकॉर्डिंग हमको एजुकेशन ट्रांसफर करना है, देना है, ट्रांजेक्ट करना है रादर. और अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं तो शायद हम कहीं कहीं फॉल्ट पर है. हमको वो आने हैं और वो अब जो आने वाला समय है वो क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, हमारे पास टेक्नोलॉजीज बहुत आने वाली है, लेकिन हमारे पास जो मेन फोकस होने वाला है वो पेडागोगी, कि हमारी पेडागोगी कैसी होगी जिस जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है स्टूडेंट का वो हो. ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा हम सब के लिए, इंडिविजुअल टीचर के लिए, डिपार्टमेंट के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए. Center moves bringing IITs, IIMs under online education system. 6 inputs from UGC and AICTE. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ये कह रही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जब सभी संस्थाओं को सब्जेक्ट वेरिएंट हटा दिया है, स्पेशलाइजेशन हटा दिया है, सब संस्थाएं सबको पढ़ाएंगी, सब सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, तो क्यों ना आईआईटीज और आईआईएम सोशल साइंसेज के, ह्यूमैनिटीज के कोर्स ऑफर करें, और न केवल ऑफर करें बल्कि ऑनलाइन मोड में ऑफर करें, जिससे क्वालिटेटिव चेंज पूरे कंट्री में आए. क्योंकि अगर आप आज हम उस दिन मैं डीवी सिंह का लेक्चर सुन रहा था, वो ड्रॉप आउट रेट्स की बहुत काफी चर्चा कर रहे थे, वो वास्तव में एक संगीन समस्या आज के डेट में. लेकिन अगर हम एनपीटीईएल के कोर्सेज को देखें, जो एनपीटीईएल कोर्सेज चलाता है, उसमें जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल, लेस देन 10%. तो अगर हमको उनका एक्सपीरियंस मिलता है, उनके कंटेंट मिलता है, उनका वे मिलता है, उनका प्रोसेस मिलता है, तो शायद ये ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा. गिविंग स्टूडेंट्स एन इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन लर्निंग, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग तो आने वाली है, वो कोई सा भी सिस्टम हो, और उसमें स्टूडेंट को कनेक्टेड रखे हुए, उसकी इंडिविजुअलाइज्ड रिक्वायरमेंट. क्योंकि जनरली हम ये समझते हैं, हमारा परसेप्शन ये है कि ऑनलाइन मीन्स ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार कंटेंट डाल दिया उसके बाद काम खत्म. बल्कि जो टेक्नोलॉजी ने हमको रिवर्स अपॉर्चुनिटी दी है, बल्कि ऑनलाइन से हम इंडिविजुअल टीचर को कितना बेहतर बना, इंडिविजुअल स्टूडेंट को कितना बेहतर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट. क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, कि आप उसको उतना सिखाएं जिस इंटरेस्ट से, जो इंटरेस्ट स्टूडेंट का है. जैसे मैं एक उदाहरण दूं, आज बिल्कुल लाइव उदाहरण है, ताजा उदाहरण है. हमारे विभाग की एक छात्रा, एक विद्यार्थी है, उसका इंटरेस्ट पेंटिंग, बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाती है वो. एक दिन मेरा ध्यान वो फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप जो स्टेटस है उस पर लगा रखा था, अभी कुछ 15-20 दिन पहले. तो मैंने कहा, ये बेटा बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, क्यों नहीं इसको थोड़ा पॉपुलराइज करें. तो वो
पेंटिंग तो बनाती है लेकिन उसको पता नहीं है, वो शी डज नॉट नो हाउ टू गो एड। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस बच्ची के लिए मैं एक पोएम लिखूं। मेरे सपनों का पुस्तकालय मैंने फेसबुक पर डाली है, और मैंने भी कभी कोई पोएम नहीं लिखी। देखिए किस तरह का एनवायरमेंट आ रहा है। मैंने भी कभी कोई पोएम नहीं लिखी पूरी जिंदगी में, और बल्कि मेरा पोएम की तरफ कोई झुकाव भी नहीं है, कभी कभी नहीं रहा। लेकिन मैंने उस बच्चे के लिए एक पोएम लिखी, और वो पोएम उसके फोटो के साथ टेक कर उसको लगाकर मैंने अपने फेसबुक उस पर लगा, और पीपल हैव अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग। इतने इतने सारे रेस्पॉन्सेज आए हैं। एंड दिस श्रेया जो जिसका दबा हुआ वो एक इंटरेस्ट था, अब वो मैं मुझसे कुछ दिन पहले कहती सर क्या हमारे यहाँ अगर पेंटिंग डिपार्टमेंट होता तो मैं सीपीसीएस से वहां जाकर 2 कोर्सेज सीपीसीएस में पेंटिंग डिपार्टमेंट से ले लेती। दैट काइंड ऑफ चेंज इज रिक्वायर्ड। AI will transform the way online education works। मैं तो इससे और आगे की बात कर रहा हूँ। देखिए अभी रोबोट्स की बात आ रही है, शायद आगे आएगी। हाँ, रोबोट्स इन द क्लासरूम। अभी रोबोट्स को यूज हम टीचिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता रोबोट के रूप में कोई ऐसा प्रोग्राम बनाकर कोई ऐसा कोई लर्नर हमको पेश कर दिया जाए जो रोबोट के जैसा हो। शायद 40 साल 20 25 30 साल बाद ऐसा होगा कि इंडिविजुअल नहीं आएगा, रोबोट लर्न करने आएगा, कि वो उस यूनिवर्सिटी में जाइए और डिग्री लेकर आइए, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इस स्केल का। और वो रोबोट अगर मेरी क्लास में आ गया तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसको कैसे पढ़ाऊंगा। शायद ये एजुकेशन पॉलिसी उस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस और उन सबको इंटीग्रेट करके चलने की बात कही है। अगर हम आगे चैलेंजेस की बात करें तो क्या एनरोलमेंट के चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि पेंडेमिक से कुछ चैलेंज तो आने वाले हैं। देयर विल बी गैप फॉर इक्विटी एंड क्वालिटी निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। डिजिटल डिवाइड की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो आ रही हैं इनकी तरफ ऑलरेडी एनईपी में एड्रेस किया हुआ है कि ये सारी चीजें आई है। उनको हमको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डील करना है, हमको डिजिटल डिवाइड कैसे डील करना है, हमको फैकल्टी को कैसे डेवलप करना है, और हमको कंप्लीट मॉडल को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। Yes, this is again very important. How is learning management helping the education industry? क्योंकि अभी भी हम लोग जैसे हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, लाइक कोहा यूज करते हैं, लाइक सोल यूज करते हैं, तो ऐसा हम LMS जब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आता है तो वो उसकी फैकल्टी उसके पीछे हट जाती है, जबकि उसकी जरूरत है। हालांकि पेंडेमिक में इसकी तरफ रुझान बढ़ा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आगे आई हैं LMS यूज करने के लिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट in online class, in digital classes, digital teaching. The teacher will be under test every time, every day, every moment. जो टेस्ट न केवल स्टूडेंट करता बल्कि उसके पेरेंट्स, बल्कि पीयर टीचर्स, बल्कि दूसरे लोग, सोसाइटी, कि आज इसने क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, वीडियो में क्या बोला है, क्या गलत बोला, हिंदी आती है कि नहीं आती, अंग्रेजी आती है, कौन सा शब्द गलत बोल दिया। Yes, it is going to be big challenge for us, all of us. हम टेस्ट स्कैनिंग होगी हम लोगों की सबकी। How young would like to resign education and skill for post COVID era? अगर शायद ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, लेकिन अगर हम डिजिटल, ये लास्ट मेरी स्लाइड है, अगर हम डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ रहते हुए जो NEP में बात कर रही है, बहुत सारी आशाएं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चैलेंजेस जो दिक्कतें जो सामने पेश की गई हैं मीडिया में और डिफरेंट सोर्सेज में, निश्चित रूप से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सबका जवाब एजुकेशन पॉलिसी में है। डिजिटल एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। ऐसा नहीं है कि ये एक आइसोलेशन में काम कर रहा हूँ, नो, इट्स फॉर द होल कंट्री। NEP is diagnosis with prescription. This is very important, very important. NEP में इन सब समस्याओं को पहले डायग्नोस किया है और उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन किया है। अगर हम ये जो चैलेंजेस की भी बात करें तो ये ऑलरेडी वहां पर डायग्नोस्ड है एंड प्रिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल देयर।
ब्रिंगिंग आउट रेगुलेशंस इन द स्पिरिट ऑफ पॉलिसीज, ये अगेन जैसा ऑनलाइन रेगुलेशन हो, चाहे मूक ऐसे स्वयं मूक एजुकेशन रेगुलेशन हो, चाहे तमाम तरह के रेगुलेशन जो पिछले 2-3-4 साल में आए हैं, सारे के सारे रेगुलेशन एनईपी की भावना की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, उनके उस स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा दौर आने वाला है रेगुलेटरी चेंजेस में, क्योंकि सब संस्थाएं सब कोर्सेज ऑफर करेंगी, सब इक्विटेबल होंगे, कोई भी एडमिशन ले सकता है, कभी भी एडमिशन ले सकता है, आ सकता है, जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो रेगुलेशन तो बहुत व्यापक रूप से बदलाव आएंगे, और जो बदलाव आएंगे उनको सही प्रॉपरली उस भावना को जो एजुकेशन पॉलिसी में है एड्रेस किया है, उस भावना में शायद वो चलते रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NETF आई ऑलरेडी डिस्कस, और जो मिनिस्ट्री में इंडिपेंडेंट यूनिट जो स्टेब्लिश होगी उसके बारे में पूर्व में चर्चा किया। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ जितने भी समझ थी उसके अकॉर्डिंग कोशिश की है शेयर करने की, और आगे जो डिस्कशंस आएंगे वो इस एरिया पर उसमें इन बातों का चर्चा होगा। Thank you very much, Professor Dinesh Gupta, for highlighting in very, very simple terms the key features of National Education Policy 2020, and also talking about the digital transformation in this direction for equitable use of technology for use. And when you highlighted specifically the inclusiveness and equality in education. Yes, it is very true that the mission of NEP is this is to achieve the Sustainable Development Goals of United Nations of 2030 by 2030, and the more emphasis has been placed on globalization, open educational resources, attraction of top 100 universities, and especially stopping of the brain drain. So, with these words, I now request Neha to take up the questions, please. Good afternoon, sir. So it was all explained very nicely, and there are no questions as such, not in the chat or in the question and answers. If any of the panelists has any questions, then they can tell. Neha, I think Dr. Jivesh Bansal wanted to ask something. I'll make him the panelist. Yes. All right, ma'am. Yes, Jivesh. Dr. Jivesh Thank Bansal. you. हाँ जी, thank you, Professor Gupta, for such a nice lecture. जी ढंग से सर आपने ये, am I audible ना? Yes, please, देवेश जी। हाँ सर जी, तो आपने बड़ा प्रैक्टिकल लेक्चर ये दिया, मैंने लेक्चर सुना, आपने जो भी वर्ल्ड एजुकेशन रिपोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे थी, जिस तरह से आपने प्रैक्टिकली और अपनी भावना, सबसे बड़ी जो मैंने देखा है टीचर की जो भावना से आपने इस लेक्चर को दिया। तो मैं सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को सर इसमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए? देखिए डॉक्टर जीवेश जी, अभी ऑलरेडी हम इस ओर से जो डिजिटल कंटेंट की जो यूज है उस पर लाइब्रेरी फोकस कर रही है, लेकिन वो यूज इट एंड लीव इट फॉर्मेट में चल रहा है कि आपकी इच्छा हो तो ले, आपकी इच्छा हो तो ना ले। शायद हम लाइब्रेरियंस को ये जो भाव है ये बदलाव लाना पड़ेगा, हमको उस इंडिविजुअल यूजर तक जाना पड़ेगा, कि भावना को समझना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। जैसे उदाहरण एक मैं देता हूँ, जैसे मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, हाउ टू हाइपोथेसिस, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग, ये मेरा टॉपिक है। अब जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि मैं क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहा हूं आज के डेट में, मैं या तो ऑफिस से यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहा हूं या घर से पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 2-3 अच्छे से वीडियो चाहिए, मेरे को 2-3 अच्छे से टेक्स्ट चाहिए जो OER हो, मेरे को 500, 10, 12, 15 ऐसे अच्छे से एग्जाम्पल्स चाहिए जो जिससे बच्चे को देखते ये लग जाए कि ये हाइपोथेसिस
क्या है, वो एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज गो थ्रू बेटा। ये 15 हाइपोथेसिस हैं, इनमें किस तरह से किसमें नल हाइपोथेसिस है और नल हाइपोथेसिस है, उसके भी लिखने के 3 तरीके अलग अलग है, वो कैसे कैसे लिखा है। शायद लाइब्रेरीज को इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इंडिविजुअल टीचर पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमको केवल वहां बैठकर इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमारी जो वो रिपोर्ट्स जो ऑनलाइन यूसेज की है वो पब्लिशर देगा, बल्कि हमको ये कोशिश करना चाहिए कि उसका यूसेज है वो 95% नहीं 300 टाइम्स होना चाहिए। हमको ये नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास 7,000 ई बुक्स है, उनमें से 400 किताबें यूज हो गई है। हमको ये बताना कोशिश करना चाहिए कि इन 7,000 में 7,000 को कितने मल्टीपल यूज हुआ है, कितने बार यूज हुआ है। शायद हमको यूजर उसकी तरफ इंगित करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी, क्योंकि आप नहीं सिखाओगे तो हम सीखेंगे, टीचर सीखेगा। मतलब आप और हम अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन वो टीचर सीखने वाला है। अगर उसको और मौका दे दिया 6 महीने 12 महीने का, तो उसको कहीं कहीं वो बच्चा सिखा देगा। वो बच्चा आज का स्मार्ट है, बच्चा सिखा देगा, सर ये वीडियो मेरे को मिला, आपने पढ़ाया उससे अच्छा है। अभी की बात बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था एथनोलॉजिकल रिसर्च मॉडल ऑफ एथनोलॉजी। अब मेरे एक बच्चा मेरे को 20 मिनट का एक वीडियो भेज रहा है। किसका भेज रहा है? एक फिल्म डायरेक्टर है, उस फिल्म डायरेक्टर का एक इंटरव्यू है। वो फिल्म डायरेक्टर एथनोलॉजिकल मूवीज बना रहा है, कहां पर? बॉलीवुड में। और उस डायरेक्टर का 20 मिनट का इंटरव्यू शायद 20 क्लास में भी उसको इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता एथनोग्राफिकल, भले मैं कितना ही उसमें डेप्थ में चले जाऊं, जो उस डायरेक्टर ने 20 मिनट के वीडियो में उस ऑडियंस को पढ़ा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कंटेंट है, वो कंटेंट में व्यापक बदलाव आने वाला है, आ चुका है, और ये जो बदलाव आ रहा है हमको इसको पहचान करने की जरूरत है, पहचान नहीं करने की जरूरत। ये जो बदलाव आ रहा है हमको इससे 3 स्टेप आगे चलने की जरूरत है। अगर हम 3 स्टेप आगे नहीं चलेंगे तो कोई दूसरा हमको निश्चित रूप से छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, ये इंटरनेशनल कंपटीशन आने वाला है। तो शायद मैं पता नहीं मैं आपकी बात का जवाब सही दे पाया है। नहीं सर, बड़ा अच्छा है सर। मतलब कि वी आर नाउ ग्लोबली, इस मतलब कि वी हैव टू डू ग्लोबल कंपटीशन इन द एजुकेशन सेक्टर। Thank you, sir. Thank you, Madam Preeti, for organizing such a seminars. We are taking huge benefit from your seminars. Thank you. Neha, you can take up the rest of the proceedings now. Thank you, Dr. Bansal. Thank you, ma'am. Ma'am, there are no further questions. Any other panelist who has any questions? No, nothing. Right, we got a chat about somebody from Nigeria have an interest in the topic, but unfortunately it is only for the Hindu speaking. I think there was an issue of the line communication. We never knew that there's someone from outside also. So I'm really sorry for it. Okay. Further continuing then, ma'am, I request Professor Rupak Chakravarti to take up the vote of thanks now. Thank you, Neha. Am I audible? Yes, you're audible. I would like to express my deep gratitude to Professor Dinesh K. Gupta, DLIS, Central University of Haryana, Mahendragarh, for finding time from a busy schedule for us and delivering the talk on National Education Policy 2020 in a very lucid but very comprehensive manner. In fact, he touched upon all the minute details of this, you can say, a very confusing topic also, because it is still in discussion and people are thinking what is in the draft. He explained in detail the technological interventions which have been emphasized by the NEP 2020 and their long-term implications on Indian higher education system, or you can say Indian education system in totality. The participants were greatly benefited from your enlightening talk. Thank you very much, sir. My thanks are also due to Honorable Vice Chancellor Professor Ramkumar, Dean of University Instruction and Dean Research, for encouraging us and supporting us
to conduct such webinars addressed by eminent speakers. I also thank all the participants for showing interest and for their patience listening. My sincere thanks are also due to my dear colleagues, research scholars, and students of the department for their support. Thank you everyone. थैंक यू डॉक्टर दिनेश Thank you. इनफैक्ट आपसे लास्ट में एक चीज शेयर करना चाहूंगी आपने मुझे पूरा ड्रिफ्ट कर दिया I was totally daydreaming when you said the students tomorrow with the iPad and the 3D technology and you cited the examples of aeronautical engineering. So मुझे लगा शायद मैं भी उससे खो गई कि मैं शायद वो स्टूडेंट हूँ जो एरोप्लेन्स और सब कुछ बना रही हूँ with the 3D printing. And all that. It was really nice of you. Thank you very much. And thank you, everyone. Thank you very much for inviting me, and